Olympic podium schemes, also known as TOPS, has produced over 15 medals at the Olympics till date. The Khelo India athletes have set around 6,000 international records. और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी लीडरशिप के अंडर स्पोर्ट्स अभी एक हॉबी या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं बल्कि एक बड़ा मूवमेंट बना है. And we call this movement the Fit India movement, which has reached over 10 crore citizens of our nation. And along with this, the government has also built over 200 stadiums, which has helped increase the participation of women athletes at the international stage. And there is this one important fact that I would like to share with all of you. How the medal tally of India for Paralympians has increased from just 1, which was in 1972, to 29 in 2024. And this aligns perfectly with what our respected Prime Minister Sir has said, कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत. जी हाँ, और इसी विजन का कमाल है कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे बहुत से एथलीट्स जैसे मनु भाकर और नीरज चोपड़ा ने हमें शानदार प्रदर्शन देकर हम सबको बहुत गर्व महसूस कराया है. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम युवाओं को हमारी बढ़ती स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है और हम भी इस ग्रोथ का एक हिस्सा बनना चाहते हैं. पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे राज्य की टीमों ने साथ में बैठकर डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस किए जिसमें बहुत से आइडियाज उभर कर आए और उनमें से कुछ आज हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं. So the first solution is an initiative called One State, One Sport. So we all know that in India, due to our diversity, that many states have different strengths when it comes to different sports. So why not utilize this to the fullest potential and let certain states lead their respective sports in which they excel at, and let them organize tournaments, competitions, training camps over there, so that people from all across the nation can come there and train. Along with this, we will also need to develop multi-sport and multi-use infrastructure at the Gramin and block level, and this idea was suggested by friends from UP. इसी के साथ हमारा अगला आइडिया है स्पोर्ट्स स्कूल्स. आज अगर हम देखें तो हमारे जो युवा एथलीट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को बैलेंस नहीं कर पाते. पर हमारा आइडिया है कि इन स्पोर्ट्स स्कूल्स में ऐसा करिकुलम हो जिसमें स्पोर्ट्स को सेंटर स्टेज दिया जाए और उसके अराउंड एकेडमिक्स को अलाइन किया जाए ताकि जो एथलेटिक एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आने वाले समय में वो हम सबको गर्वित महसूस करवा पाए. साथ ही हम चाहते हैं कि स्कॉलरशिप्स फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी प्रोवाइड की जाए ताकि इनका जो ड्रीम है ऑफ अ स्पोर्टिंग एंड फिट नेशन वो इन्हें आराम से हासिल कर सके. Now for sports as a career, we know that the current government is offering job opportunities to all the athletes who are representing us at the national and international levels. But other than that, we can also provide employment opportunities to various support staff members by creating new sporting infrastructures and upskilling our existing coaches with certification and courses. This will not only help us produce better athletes, but also help establish a strong sporting ecosystem. And that also includes the live mapping of the athletic performance so that we can also track this as well. इसी के साथ हमारा आइडिया है होलिस्टिक वेलबीइंग. माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने यूएन में भाषण दिया जिसके बाद 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा और पूरा दुनिया 21 जून को योगा प्रैक्टिस करता है, तो हम कहते हैं सिर्फ एक दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं. इसीलिए हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में योगा को कंपल्सरी बनाने का हमारा आइडिया है. साथ ही हम चाहते हैं कि एक स्मार्ट लेबलिंग सिस्टम बनाया जाए जिससे पैकेज्ड फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम इंडिकेट कर सकें. ये जरूरी है ताकि जो जंक फूड का कंजम्पशन है उसे हम घटाकर लाइफस्टाइल डिजीजेस में कमी ला सकें. So for traditional sports,
I am aware how everyone knows that Garba is now part of the intangible cultural heritage which we are so proud of. We would also want to propose the inclusion of traditional sports as part of the ICH, as this will also help us pass down our culture and heritage via the medium of sports. And to encourage participation in traditional sports, we should organize yearly competitions or sporting exhibitions. I think primarily on 29th August, as it is the National Sports Day, where the primary focus can be on sports like kabaddi, kho-kho, malkam and so on. इसी के साथ हमारा अगला आइडिया है स्पोर्ट्स टूरिज्म। जैसे दावोस है, वैसे ही हम चाहते हैं कि इंडिया में भी स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि भारत एक डाइवर्सिटी से भरा देश है, जहां माउंटेन्स है वहीं पे सी भी है, डेजर्ट भी है, प्लेन्स भी है, और ऐसे ही हर स्टेट के पास अपना एक खेल भी है। तो इन्हीं खेलों की डाइवर्सिटी को यूज करके हम स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, और साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं फॉर रेवेन्यू जनरेशन। तो ये थे हमारे कुछ आइडियाज, और माननीय प्रधानमंत्री जी, इन आइडियाज का इम्पैक्ट जरूर लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसका हमें भरोसा है, और उम्मीद है कि हमारे सॉल्यूशंस आगे चलकर काम बहुत आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बात करना चाहते हैं इन आइडियाज की इम्पैक्ट की। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी आपका विजन है कि 2047 तक इंडिया शुड बी वन ऑफ द टॉप 5 स्पोर्टिंग कंट्रीज, तो हमें यकीन है कि हमारे जो आइडियाज हैं, हमारा जो विजन है ऑफ मेकिंग इंडिया अ स्पोर्टिंग एंड फिट नेशन, हम इस गोल को आराम से